تو پھر صحیح پنجابی نہیں ہو. اچھا اے ਕਿਸ ਚੀਜ਼ دسو ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ کروسنٹ. क्रोसेंट नहीं वो उसको पंजाबी में نہیں वो اکٹھی نہیں دوں گی. पंजाबी وہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں نا पंजाबियों نہیں کو تو نہیں پتہ ہی نہیں ہوگا क्रोसेंट ہوता کیا ہے انگریزاں دی باکر خانی. پنجابی یہ انگریزاں دیاں بکر خانیاں. میں یہی باکر کہہ رہا خانیاں یہ باکر خانی. اچھا کروسنٹ جو ہے نا وہ باکر خانی ہوتا نہیں ہے ویسے باکر خانی اور چیز ہے کروسنٹ اور چیز ہے کوسن نرم ہوتا ہے, باکر خانی سخت ہوتی ہے. باکر خانی جو ہے نا وہ ہے ویسے بھی مطلب وہ ہے یہ الگ میں چیز ہے ابھی چیک کر لیتی ہوں. یہ اورنج کلر کا بیگ ہے, اس کو پنجابی میں بتاؤ کون سا کلر کا ہے. باکر خانی گول ہوتی ہے. مالٹا کلر, اورنج کھٹا کلر, مالٹا رنگ, کھٹا کھٹا کلر کھٹا کلر, کھٹا کلر کھٹا رنگ. کلر کھٹا رنگ. ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں. اور ٹیبل نو پنجابی وچ دسو. میز, میز تو اردو وچ کہندے پھٹا نے. پھٹا 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 دے اور ہوندا ہے. پھٹا درجے منہ پھٹا. پھٹا ہونا وہ جو پھٹا ہوتا ہے پھٹا ہونا جیسے تے میت نوائی دی پھٹا ہونا جیسے تے میت نوائی میت دی نلان والا پھٹا ہوندا ہے. تختہ تختہ, تختہ تے او دیے جاندے نا پھانسی. نہیں اور تختہ اللہ. ہوندا ہے. تختہ بھی اچھا کہتے آئی ہیں, لو یو نو. تخت پوش بھی کہتے ہیں. کتے پوش. آ لو کھولن لگے جی الہام آئی لو یو اچھا اے وسیم بھائی کو پوچھو وسیم بھائی دسن گے ایسا کرتے ہیں, پنجابی کے 5 ورڈز پوچھتے ہیں بیک ریپڈ فائر میں. ٹھیک ہے, ہر ایک سے پوچھتے ہیں, جو جیت گیا وہ جیت گیا. ٹھیک ہے, اچھا پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہنا سے. ہنا یہ بتاؤ, نہیں پہلے 5 ورڈ سوچنے پڑیں گے نا. آپ مجھے 5 ورڈ بتا دو. وہ ہے ہی نہیں ہنا ہونا اتنے اسی بیٹھے ہیں ہنا نہیں ہے نہیں میرے نال بیٹھی ہے. پڑھیں گے آپ کو پہلے 5 الفاظ میں پنجابی کے وہ سیکھنے پڑیں گے. نہیں مینوں اردو وچ بتاؤ نا, تو میں میرے نال میری جو سہیلی بیٹھی ہے میں انہوں پوچھ لواں گی. پہلے بتاؤ نہیں دسو ہوندا اردو ہم نے بتا دیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا پہلے ہی کون سے الفاظ ہیں. نہیں میرے کان وچ جو ہے نا وہ لگیا ہوا ہے بلوٹوتھ, انہاں نو آواز نہیں جائے گی. ہاں پہلا لفظ مل گیا. اچھا چلو پوچھو زاہد بھائی پوچھو پھر. ہاں پوچھو, بتاؤ دسو مینوں. نہیں پہلا لفظ میں بتاؤں سارے بتانے ہیں آپ لوگوں نے. میرے کان میں بلوٹوتھ لگا ہوا ہے. آئی ول آسک ہم. میں نے اچھا بندہ ہی چینج کر پہلا دیا. لفظ پڑولا پڑھو نہیں, آپ انگلش میں بولو, نہیں اردو میں بولو. پڑولا از پنجابی ورڈ. نہیں میں اچھا اردو میں کوئی ورڈ بتاؤں اس کو پھر آپ پنجابی میں ٹرانسلیٹ کروا کے دیں گی ہاں ہم 5 ورڈ. ہاں 5 ورڈ اردو کے مشکل والے. اچھا 5 ورڈ ٹھیک ہے. پہلا ورڈ ہے اس کے بعد وسیم بھائی سے پوچھیں گے, پھر بلال سے. بلوٹوتھ کو کیا کہتے ہیں؟ بلوٹوتھ کو, یہ جو کان میں لگا ہوا ہے میرے, بلوٹوتھ. ڈینڈے کرنا لو لاؤن والا آلہ. کرنا نو لال والا آلہ. کرنا چلانا صحیح ورڈ نہیں ہے. کرنا نو لاؤن والا آلہ. اچھا اوکے. ٹیلی فون. ٹیلی فون پھنس گئے. ٹیلی فون ہی کہنے نے پھنس گئی, ہار گئی. اگلا بندہ پڑھو. وسیم بھائی. باجی میں سن رہا ہوں, آپ لوگ کرو بات, میں خاموشی سے سن. لے ہارنا رہا. اگلا بندہ پڑھو. سکندر دسو. اچھا وعلیکم السلام. بلال آ گیا. بلال دسو. پنجابی آپ نے پنجابی میں بولنا ہے. ہم آپ سے کوئی بھی 5 ورڈز پوچھیں گے, آپ نے اس کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کر کے فوراً بتانا ہے. اوکے ہو گیا. ہیلپ کروں نا کوئی. دسیں گے تو ہیلپ. نہیں آپ نے مجھے اردو میں بتانا ہے, میں کسی اور سے پوچھوں گی پنجابی میں. سارے سوچو نا. پہلا ورڈ ہے موبائل فون. موبائل فون. موبائل فون, آوارہ فون. ہار گئے. ٹیلی فون کہتے ہیں. ٹیلی فون ہی کہنا ہے. نہیں میں جانتا ٹیلی فون بھی انگلش ہے نا. ٹیلی فون نہیں, آوارہ فون کیا ہے میں.
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ हाँ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ अच्छा जी लेकिन फोन तो है पड़ोने ही का एक मतलब इंग्लिश लफ्ज है ना, उन्होंने किस तरह से पड़ोसी को क्या कहते हैं हाँ? पड़ोसी पड़ोसी को क्या कहते हैं हमसाए ਗਵਾਂਡੀ गवांडी। हाँ नहीं उन्होंने कहा नाला हमसाए पंजाबी में गवांडी कहते हैं, उर्दू नाला हार गए ले। बिलाल हार पंजाबी में गए गवांडी कहते हैं। हाँ बिलाल हार गए बिलाल ने कहा हमसाए नहीं मैं कहा नाल वाले। गवांडे ਗਵਾਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ गवानी कहते हैं हमसाए को तो गान वाला किनू कहते हैं ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮਰਾਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ में गान वाला मिरासी का मतलब की है फिर मरास मीरासी और मीरास में क्या फर्क है मुझे लगता है आज रात तक मिरासी मुझे असल में पंजाबी सीख लफ्ज के ही यहाँ से आया। मिरासी कोई कौम है ही नहीं, ये तो एक हम्म क्या मिरासी मिरासी कोई कौम नहीं है, क्या? अब जात बोलो। नहीं है। अच्छा, मिरासी को अच्छी तरह बिलाल ही एक्सप्लेन कर सकता है क्योंकि बिलाल फैसलाबाद से है ना। नहीं 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 मिरासी कोई जात नहीं है वैसे। देखो मैं ऐसी बातें करती हूँ, ऐसी बातें करने में क्या हर्ज है नीचे ਯਾਰ को ਇੱਕ बैठ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ होगा, ਥੱਲੇ कौन ਕਾਲ कर ਚੁੱਕ रही है? ਯਾਰ ਦੀ अपनी जो मेरी जिंदगी ਖੱਪੇ है ਖੱਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ बात ਆਈਡੀਆ मान के ਰੱਖਦੇ कर ਐਸੇ लो। ਲੋਕੀ ਪਛਾਣਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ऐसे तो जुल्म है ਉਹਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਨਜਫ ਦੀ ਭੰਡ ਠੀਕ ਨਜਫ ਹੈ ਦੀ ਕਾਲ ਭੰਡ ਚੁੱਕ ਲਓ ਯਾਰ तो फिर मुझे पहले उन्होंने वजह नहीं बताई है, अब वो वजह बना रहे हैं, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अब वो वजह सलाम। बना रहे हैं। देखो मैं अगर सोशल मीडिया पे भी ना जाऊं, मैं इनसे भी ना बात करूं, तो मैं फिर करूं क्या? मेरी क्लासेस तो इन्होंने छीन ली हैं। आप देखते थे ना मैं हर वक्त क्लासेस में लगी रहती थी, मैं बिजी रहती आप थी। टाइम निकाल के फोत होते हैं उनके मुताबिक। फिर आप मुझे, मैं आप जो कहोगे मैं कर लूँगी, आप कहते हो मैं छोड़ दूँ, लेकिन कोई किसी को हक है? बताओ मुझे सलमा, खुद बताओ, इस तरह से ये करने का हक है किसी ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋ ਬੈਠੀ ਹੈ को? नहीं यार बैठा होया थल्ले आ वड्डिया नासां वाला। ओ यार थल्ले ही रहन दे, नजफ नजफ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਹੀ ਮੈਂ बुखार चढ़ ਉੱਤੇ गया, ਆਉਂ। नजफ आ जाएगा। ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ सलाम ਭਾਈ। अलैकुम नजफ अब्बास भाई। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਭਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ अस्सलाम ਨਹੀਂ। वालेकुम। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਬਾਵਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸਾਂ ਨਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਨਜਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਜਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अच्छा ਮਸਲਾ यार एक गल दसो ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਸੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਉਹ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। यार गोल्ड ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ। ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਸਤਾ ਹੈ। नहीं पाकिस्तान ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਹੈ ਬਲਾਲ ਭਾਈ। ਬਲਕਿ 118 ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਕੇ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਦੁਬਈ ਸੇਮ ਹੈ ਰੇਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਆਲ ਜਿਹਾ, ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ। ਦੁਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੈਟ ਇਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਹੋਏਗਾ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੈਟ ਰਿਟਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸੇਮ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਯਾਰ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ 1 ਦਿਰਹਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਰਹਮ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਈ। 5 ਰੁਪਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ। ਚ 1 ਦਿਰਹਮ ਦੀਆਂ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 1 ਦਿਰਹਮ ਮੈਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਨਾ ਰੋਟੀ, ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 5 simple ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, 골ਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। 골ਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਣਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਰਟ 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 22 ਕੈਰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 10 ਕੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ 22 ਕੈਰਟ ਚੱਲਦਾ। ਪਲਾਟੀਨੀਅਮ ਦੀ ਚੇਨ ਪਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡੀ ਆਈ ਆ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 골ਡ ਲੈਣ ਚੱਲੇ? ਬਲਾਲ ਭਾਈ
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੁਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੋਲਡ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਵਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? अरे बिलाल जेवर का पूछ रहा है, इसका मतलब है शादी होने वाली है। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰਾ ਕਰਾ ਉਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋਈ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਏ ਆਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੇ। ਇਹ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਰਾਇ ਰੱਬ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਆਇਆ। ਭਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਜ਼ਾਨ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਂਗ। ਬਾਂਗਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੀਗਰ ਦੀਗਰ ਨਹੀਂ ਦੀਗਰ ਅਸਰ ਆ। ਕੁਫਤੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਫਤਾਂ ਕੋਫਤਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼। ਤੇ ਖੋਪੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਨੂੰ ਕੀ ਖੋਪੀਆ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਕੋਪਾ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਪਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਯਾਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ होतिया ਖੋਪੀਆ ਉਹ ਖੋਪਾ ਖੋਪੇ ਉਹ ਖੋਪੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੋਪੀਆ ਹੋਰ ਆ, ਕੋਪਨੇਰਾ। ਆਹ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਡਾਢਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਰਦੂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਜੇ। ਨਾ ਕਰਿਓ ਪਾਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਚਿੱਬੜ, ਹਾਂ ਬੜ ਇਹਦੀ ਉਰਦੂ ਕਰੋ। ਫੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ। ਫੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਚਿੱਬੜ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚਿੱਬੜ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖੱਟਾ ਤੇ ਪੁੱਟਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਿੱਬੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਉਰਦੂ ਚਿੱਬੜ ਦੱਸੋ। ਚਿੱਬੜ ਅਜੇ ਚਿੱਬੜ ਵੇਖਣਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਚਿੱਬੜ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਜਫ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਡੀਪੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਡੀਪੀ ਲਾਈ ਹੈ। ओए मेरी गल सुनो सर, ਡੀਪੀ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ चिबड़ किसी ने ਜੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਵੋ। ਚਿੱਬੜ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੱਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਬੜ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਾਲ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਕਾਲ ਤੇ ਲਵੋ। चिबड़ किसे वेखना ते नासर बाट नु वेख लो। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਜੀ। सफिया बाजी आप हैं यहाँ पे? हाँ जी है। ਬਰਾੜ ਬਣ शिकायत करने आया जी, अस्सलाम वालेकुम। शिकायत करेंगे हमारी। वालेकुम सलाम। मैंने कहा वो खत्म हो गया आपका केस? नहीं तारिक भाई, मंडे को वो है मुतलिक फॉर ब्रेदर से हेयरिंग का। अच्छा तो ये आप मैं कहा ब्राड लगाई है ना आपने, तो कोई नहीं ऐसी तारिक भाई, बात वो नहीं वो पंजाबी क्लास है, आपको पता पंजाबी है क्लास। स्वीडन में पब्लिक होती है और हम लोग यहाँ पर कोई ऐसी बात भी नहीं कर रहे हैं। पंजाबी क्लास लगाई हुई थी मैंने, बल्कि अच्छा अच्छा गुरमुखी मैं बैकग्राउंड में मेरी गुरमुखी सिखा रही बल्कि सहेली से लड़ाई हो रही थी पीछे बैकग्राउंड में। अच्छा मैं एक लफ्ज पूछ लूं? हाँ पूछे, मेरे पास पंजाबी दान मौजूद है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ? यादें किसी को Memories। याद करना। ਚੇਤਾ यादें दी पंजाबी बताओ। ਨਹੀਂ ਹੈ। यादां ਯਾਦਾਂ ਦੀ यादां ते ਪੰਜਾਬੀ शबरातां ਚੇਤਾ आई। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਤਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ यादा ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। चेता भूल गया नहीं, यादें। ਯਾਦ ਹੈ। हाँ लेकिन किसी की ਯਾਦ यादें ਭੁੱਲ आई ਗਈ, थी, ਯਾਦ याद ਭੁੱਲ आई। ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਐਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚੇਤਾ ਚੇਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੈਂਸ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਦਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ मैनू चेता है, ख्यालात है चेता। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ अच्छा ਪਰਚਾ ਕਰਾ बताओ ਦੇ। फिर क्या है वो, बताएं। ਤਾਂਗਾ यादें ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। याद ਤਾਂਗ टांग ਹਾਂ ਤਾਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ नहीं वो करे याद ਤਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭਾਈ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂਗ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਈ। ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਪਈ। ਕੱਢ ਲਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੱਢ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਪੜਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ। ਕੱਢ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅੱਜ। ਓਏ ਬਲਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੱਢਣਾ। नबूवत जारी है कि नहीं ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ।
ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। तारिक चौहान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक ठाक, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। और मैं आपसे पूछ रहा था कि आप भी स्वीडन में हैं तो आप मंडे को जा सकते हैं हियरिंग में? नहीं यार मैं ये नजमुल हुदा कौन है? बाजी मैं नहीं सफिया, जा सकता, मैंने वहां जाके क्या करना है? बाजी सफिया माइक तो खोले ना। नहीं, वैसे कह रहा था कि एक जने बंदे को मॉरल सपोर्ट हो जाती है। नहीं मैं तो वैसे ही चौहान साहब उत्ते जाके ना चौहान चौहान साहब साहब उत्ते जाके कहना खलीफा फलाना 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 चौहान साहब केस किसी खराब होया ना भेजा डर नहीं, ये दूर खराज है दे ना। डर। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जी जी। मैं क्या चौहान नजमुल हुदा कौन है आप भी बाजी? कहीं डर तो नहीं गए? नजमुल हुदा मिर्जा साहब की किताब से। नहीं नहीं, ये नीचे एक आईडी है नजमुल हुदा के नाम से। बाजी ये कौन है? मॉडरेटर है? कौन है? यार जेड़ा भी रहने तेनू की हो खोरे रहा कौन नो है? आइडिया। ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੋ ਉਹਨੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਜਾਇਆ ਕਰ ਯਾਰ नजमुल हुदा कोई मॉडरेटर है? हाँ मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? ऐसे तो नहीं किसी को बना सकती। तो ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ कोई ना कोई ਦਿੱਤਾ होंगे। अच्छा, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ। मॉडरेटर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ किसी को ਤੇਰਾ बनाया हुआ है ਮਜ਼ਾਕ आपने? बिलाल कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दो। यार मैं समझ गई, मैं समझ गई, मैं समझ गई। ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, कोई बात नहीं, ये मजाक किया होगा। ਕੌਣ ਲੇਕਿਨ ਹੈ? ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿੱਬ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। तस्वीर ਬਾਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਸੇ ਨਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਬਿੱਬ ਬੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਿੱਬ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਓ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਤ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੂੰਗ ਪਾਂਗ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਈਅਤ ਦੀ। ये कौन है जो टॉपिक गलत तरफ लेके जा रहा है? ओए हाँ, ये मंडे को देखें, मैंने जाना देखें। है। मेरी बात सुनो, आप समझते क्यों नहीं हो? वो लोग मेरी एक एक रिकॉर्डिंग एक एक वो देख रहे हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आई विल बी केयरफुल ना। मंडे को उन्होंने कहना अच्छा हजरत मिर्जा मसरूर की जो मदा में कोई नज़म है तो वो पढ़े। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਨਾ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ। रोटियां चेक करता है खलीफा हमारा। तारिक भाई कभी भी मुझे मसले में नहीं डालते थे। तारिक भाई ऐसा काम नहीं करना है। नहीं है सब हम हर एक शख्स से प्यारा है खलीफा हमारा। ये अच्छा। ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਆ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ? ये तो पता है मुझे। ਜਦ ਕੋਈ ਜਮਾਤੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ जी 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 इसके बगैर तो नहीं बात हो सकती ना जी। अमीर साहब आते हैं, अमीर साहब नजफ छोड़ अब्बास नजफ अब्बास तारिक चौहान साहब जमात का ऑफिशियल बन रहा है, लेकिन बाजी नाम नहीं मेंशन कर सकती। अच्छा अच्छा ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैं तो सुनना पूछना भी नहीं नहीं। चाहता। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਥੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। और हजरत हकीम नूरुद्दीन ने क्या सी कि मैं अंजुमन पर थूकता भी नहीं हूँ। जी मिर्जा साहब ने 14 बंदियां दी अंजुमन बनाई सी। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ एक मिनट ਤੁਹਾਡੀ। नजफ, एक मिनट जी 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 जी। चौहान साहब ये हकीम नूरुद्दीन साहब ने किस जगह पे ये बात बताई थी, कही थी, ये मुझे बताइएगा। और दूसरा मुझे जहाँ तक याद पड़ता है
वो तो हाँ खुद अंजुमन के मेंबर नहीं थे। बिल्कुल, वो सदर थे अंजुमन के। हाँ वो तो सदर थे। हाँ जी, लेकिन वो कहते हैं मुझे अंजुमन ने नहीं बनाया, अंजुमन थे बनाए थे तो मैं थुकता भी नहीं। हाँ। नहीं ये उन्होंने किस सन में ये बात कही है? ये जब वो बन गए थे, मैं आपको भेज दूंगा उनका वो पहले खुतबा, खलीफा बनने के बाद मेरा ख्याल है ये बात उन्होंने खलीफा कही बनने है। के बाद। हाँ, खलीफा बनने के बाद। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैं समझ गया हूँ आप किस चीज़ की बात कर रहे हाँ हैं। जी, ठीक है, ये मेरा ख्याल है अल बदर में उनका खुतबा है जुम्मे का। जी जी, खुतबात नूर में भी जाएंगे ना तो वहाँ पे भी है, ठीक है ठीक है। जहाँ पे वो कहते हैं ना खिलाफत केसरी की दुकान का सोडा वाटर नहीं है। हाँ ओए मुझे याद आया, तारिक चौहान भाई को तो वो स्वीडिश आती है। मैं तो इस मामले में उनको एक चीज़ चेक करवा सकती हूँ। हाँ जी, जज़ाकल्लाह तारशी बेटा, सलामत रहो। ठीक है। तो मुर्तज़ा मैं अवान फिर साहब को आपको पता चल गया कि जया साहब मिर्ज़ा मसूद साहब की जगह खलीफा बनना चाहते हैं, हमें नहीं पता चला। ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖਲੀਫਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ, वो वो तो नहीं खलीफा यार, है। वो तो खुद जो है कहते हैं कि भाई ये खिलाफत किधर है। हाँ, वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 14वें खलीफा है, मिर्ज़ा साहब 13वें थे। वो तो खुद कहते हैं कि जमात की खिलाफत की हैसियत ही कोई नहीं है, तो उन्होंने क्यों बनना है खुद खलीफा हाँ, मसरूर अहमद साहब को उतार के। ਅੱਛਾ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? नहीं भाई मुझे नहीं पता। मैंने तो लगता है कि तू दसना हर सूरत की क्यों लाई। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, ये ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, अच्छा जी। ਮੈਨੂੰ हाँ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ यानी ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਂਦੀ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਨ ਵੀ ਪਾ। अच्छा मेरा एक सवाल है भाई सबसे, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸਰ। मेरा एक सवाल है, ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਫਰੀਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਲੀਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਣ ਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਡਰ ਖਿਲਾਫਤ ਆਏਗੀ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖਲੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਹੋਣਗੇ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि खिलाफत बादशाहत की छतरी के नीचे। बाज नहीं आना इन्होंने, बाज नहीं आना इन्होंने। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। मैं वो यही कर हजरत रही हूँ। हजरत चलो ठीक मिर्जा है, मैं जा साहब रही ने हूँ भी तैयारी करने अब। हजरत ओके मिर्जा जी, साहब ने ओके। फरमाया। अच्छा, अभी अभी तैयारी अच्छा करनी है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? कि ए अफ्रीका तू भी महफूज नहीं है, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ हम ਨਹੀਂ 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 हम अनकरीब तुम्हारे ऊपर कब्जा करने वाले हैं। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2028 ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ 2028 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। अच्छा, ऐसे लिए जंबा साहब ने उन्होंने 2028 दिखाया गया सी जंबा साहब। 2028 ਚ ਕੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ऐ नहीं ना आगे कुछ दिखाया, बस 2028 दिखाया गया। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। हाँ जी, सिर्फ हिंसा दिखाया गया। की चलें होएगा? जी, मैं चलती हूँ, अब तैयारी शयारी करूँ, ठीक है, बहुत काम है। चलें। ओके, जज़ाकल्लाह फॉर खुदा कमिंग हाफिज़। एवरीवन। इंशाल्लाह फिर मंडे को या ट्यूसडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सिकंदर मिर्जा अपनी ब्रॉड लगा लो। सिकंदर मिर्जा? हाँ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਟਿਕਟੌਕ कैमरा हाँ ऑन हाँ, करके। आधे घंटे के लिए। ताशी आइए, मैं ताशी से बात करके जाती हूँ। चलें, ठीक है, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ताशी गए?
चलो ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह सिकंदर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रैक्टिस नहीं होती, यही वजह है कि अगर 100 मामला 295 का उनके पास जाता है तो उनमें से 99 लोगों को सेशन से सजा हो जाती है, और उनमें से 99 लोग जब हाई कोर्ट में अपील रखते हैं तो कम से कम अपील लगते लगते उनके 5 साल लग जाते हैं। यानी इतनी अपीलें पड़ी हुई हैं वहां पे कि उनमें आपकी जो सीपी के जो सीपी हम जेल में कहते थे कैपिटल पनिशमेंट, यानी सजाए मौत, सबसे बड़ी सजा को बोलते हैं। अगर सीपी की 2021 का सीपी बंदे पड़े हुए हैं ना, अभी तक नहीं निकली 2021 वालों की, 2026 चल पड़ रहा है, क्योंकि हम एक बंदे के 295 में अपील उसकी निकलवा रहे हैं, लगवा रहे हैं, और सारा स्टाफ अंगेज करके किसी तरह को पैसे 4 आने दे के हम चाह रहे हैं कि वो 2025 में सजाए मौत हुआ है तो हम चाह रहे हैं 26 में उसकी निकलवा के फाइल ना फैसला ले लें। तो वो काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब हो चुके हैं, अपील हमने लगवा ली है, नोटिस भी करवा दिया, अब नेक्स्ट डेट निकलवाना चाह रहे हैं, और नेक्स्ट डेट पे बहस करवा के बंदा हमें लगता है बाहर निकल आएगा। तो मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए। आपके साथ बहस करना चाहता हूँ, ठीक है, आप समझो कि आपकी अदालत लगी हुई है। यार एक सेकंड यार, इससे ऊपर की बात हो रही है, अभी अदालत वाली बात नहीं है। काश भाई आप अपनी कंक्लूड करें, फिर मोक्ष भी कोई अपना रिमार्क्स देना चाह रही है। हाँ, तो पहले जो बात है ना तौहीन की, मैं समझता हूँ इसको मैं अब कंक्लूड करने की तरफ ले जाऊं कि ये तौहीन पैगंबर इस्लाम की हुई है या नहीं हुई है, ये कोई और तय नहीं कर सकता सवाए पैगंबर इस्लाम के। मेरा जो ये बात सिर्फ ये जो मेरा मौक़िफ़ है ना, ये हतमी तौर पे मैं इस पे पहुंचा हूं, क्योंकि जब आप इनसे सुलह की बात करते हैं ना, ये कहते हैं कि सुलह पैगंबर इस्लाम के अलावा कोई और नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात की? आप जब कहेंगे ना कि माफी दे दें तो कहेंगे ये माफी का इख्तियार हमारे पास नहीं है। तो बात अच्छा, माफी की उसमें गुंजाइश है ही नहीं। गुंजाइश क्यों? वो उसकी दलील ये देते हैं कि ये माफी आपने तौहीन की है पैगंबर इस्लाम की, तो वो माफी भी वो ही दे सकते हैं, हम उनके बिहाफ पे माफी नहीं दे सकते। तो फिर सजा भी उनको ही दे, सजा भी अगर कोई सजा, ये सजा आप दे सकते हैं और माफी वो दे सकते हैं। आप देखें ना उनके पैगंबर इस्लाम के अगर जिंदगी के मुताले में आप देखें सीरत में, तो आप देखेंगे कि उन्होंने डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट फैसले किए हैं। कभी किसी को मरवा दिया है, अगर वो काबे के गिलाफ के साथ भी लिपटा हुआ बंदा, आपने कहा इसको पकड़ो, इसको कत्ल करो, इसने मेरी हुजू की है, मेरे खिलाफ जो है बताया लोगों को कि इसको वही कोई नहीं आती, और उसको कत्ल करवाने तक गए। और कभी जो है किसी ने उजरी गंद से भरी हुई ऊपर फेंकी है तो कहा चलो कोई बात नहीं। तो यानी ये उनके मूड पर भी डिपेंड करता है कि वो किस बंदे को छोड़ना चाहते हैं, किस बंदे को उस मामले की सजा देना चाहते हैं। लेकिन जो अब तक ज्यादातर जो उनकी जातियात से चीजें मिलती हैं, एक सेकंड यार, वन आर्मी भाई, एक सेकंड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसा नहीं किया, साबित करो अब। मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़े अच्छे तरीके से मोहब्बत से मानता हूँ, पर ये है कि आप यार वो कुछ और समझ रहे, ये असल में दादा की रिप्लेसमेंट में आए हैं आज काश भाई, तो आप टेंशन ना लें। दादा को जानते ना, हमारे भाई दादा की आकाश, अगर मैं अब्बासी को कह दूं कि अब्बासी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या ये भी गुस्ताखी है? नहीं, दुआ दे रही हैं आपके, अल्लाह इन पर जो है रहमत करे, बरकत करे इनके लिए। नहीं, मैं उसको अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रही हूँ अगर तो। हाँ, तो उसका सलात का मतलब यही है ना, दरूद हो आप पर, आप इन पर हो। हाँ, लेकिन अब्बासी पे क्यों दरूद हो? लेकिन अब्बासी पे क्यों दरूद हो? अब्बासी कोई नबी है? आप मांग रही हैं ना, आप नहीं, तो वो तो मेरी मर्जी है ना, वो तो मेरी मर्जी है ना, ठीक है। मैं अब्बासी को कहूँ या काले कां को कहूँ, ये चिट्टे अच्छा, आपने सीधा जाके मुझे काले कहां से मिलाया? वाह जी वाह, ये गुस्ताखी किया आपने। नहीं, ये होती है गुस्ताखी, आप समझ आइए गुस्ताखी का मतलब क्या होता है। गलत नहीं जाना, मैंने एक एग्जांपल देने के लिए थोड़ा फनी किया है, ठीक है। नहीं, वो बता कुछ और गलत नहीं जाना, मेरा कहने का मतलब था कि नहीं, मैं अब सीरियस हो जाती हूँ, मैं थोड़ा सा फन किया था। बात यह है कि किसी को भी अगर मैं कोई मकाम दूं, ठीक है, या मैं कोई मकाम ना दूं, इसमें किसी तीसरे को क्या तकलीफ है? या अगर मैंने अब्बासी को कह दिया अब्बासी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसमें तुम्हें या XYZ को तो कोई तकलीफ नहीं है ना, राइट?
असल में ये ठीक है मदारज मुसलमानों ने असल में ये तय नहीं करे। एक सेकंड अच्छा अब्बासी अब मैंने बात करनी है थोड़ी सी सीरियस तो प्लीज जरा मुझे टाइम चाहिए ठीक है जी बात ये है कि मैंने तुम्हारी आकाश सारी बात सुनी है बिल्कुल तुम सही कह रहे थे देखो पहली बात यह है कि मुसलमानों के कितने कंट्री हैं उनमें से वाई इन पाकिस्तान ये जो है सैंक्शन लगी हुई हैं जी 95 ABC वाली जो सारी हैं ये क्यों है पाकिस्तान ही क्यों इतना इस चीज के लिए चुना गया ये एक क्वेश्चन है मैं तुम्हें दे के जा रही हूँ तुम लोगों को बेसिकली इस पे भी बात होगी जाना जोना कोई नहीं है नहीं जाती बस अच्छा नहीं जाती सुन तो लो ना सवाल मेरा लेकिन रख लो ओके पहली बात तो ये आपने सोचने की मोक्ष है आपने कभी ये आकाश भाई से पहले कनेक्ट हुई हैं आप? आकाश खुद ही बता दे हाँ कई बार। हाँ बस फिर ठीक है मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि आप एक दूसरे को जानते हैं या नहीं। अच्छा अच्छा आकाश एक सवाल तो ये है कि वाई पाकिस्तान के वहाँ पे ये चीज़ है और हालांकि और भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ पे उस तरह का वो लॉ नहीं है जैसा पाकिस्तान के अंदर है दूसरी बात जो मैंने कही थी कि अगर मैं किसी को अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कह के कोई मकाम दे देती हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि अगर मैंने एक मकाम दिया है किसी को और दूसरा कोई नहीं दे रहा या तीसरा बंदा उसको वो मकाम नहीं दे रहा तो क्या मेरे उस मकाम को देने से उस बंदे में फर्क पड़ेगा मेरे नजदीक नहीं पड़ेगा ना ठीक है लाइक आई एम अ गॉड मैं खुदा हूं मैंने किसी को चुन लिया मैंने किसी को बना लिया एक स्पेशल पर्सन अब मैं उसको अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहूं उस पर दरूद भेजूं उससे प्यार करूं ना करूं जो मर्जी करूं वो तो मेरा उसका स्टेटस है ठीक है इसमें तीसरा बंदा उसको कुछ भी कह रहा है जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी तो वो तो फर्क ही नहीं पड़ता ये एक पॉइंट है अब दूसरा पॉइंट ये है कि जिनको आप नबी कहते हैं वो उनकी जो भी स्टोरीज हैं लाइफ से रिलेटेड लिखी हुई हैं जो किताबों के अंदर अगर तौहीन का ही मुकदमा आप लोगों ने रखना है ना तो फिर सॉरी टू से जितने भी अंबिया हैं इब्राहिमिक रिलीजन्स के अंदर सबसे ज्यादा तो तौहीन का मुकदमा उन सब पे बन जाएगा वो इसलिए कि जो उनसे पहले लोग थे उन्होंने उनको मारा भी उनके साथ जहाद भी किया उनकी गर्दनें भी उतारी उनकी खुदाओं को भी बुरा भला कहा और उनको जबरदस्ती अपने अंदर कन्वर्ट भी किया तो ये भी इंसानियत में नहीं आता और ना ही ये कोई किसी आप से कह सकते हैं कि कोई भी बड़ी आप लोगों को मिली हुई है आज़ादी मिली हुई थी नहीं वो भी फोर्सफुली कन्वर्जन में गए थे और फोर्सफुली कन्वर्जन में जब भी किसी को लेके जाया जाता है तो आप खुद ही सोच लें कि वो कैसे लेके जाया जाता है तो जो अपने मकाम को बनाने के लिए या मैं सुप्रीम हूँ या मैं ये हूँ तो मेरा मकाम ये अब इसकी गर्दन उतार देनी चाहिए अब इसको बख्श देना चाहिए इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप ठीक है इसमें वो चीज नहीं आ जाती कि आप ये कहें कि एक बंदा बड़ा आज रहीम है आज उसका दिल कर रहा है उसके ऊपर कोई गंद फेंक के जा रहा है तो मैं बड़ा रहमान और रहीम हो गया सुबह जो है मैं गर्दन तलवार निकाल के 10 बंदों की गर्दन उतार दूं क्योंकि जी आज मैंने 10 बंदों को इस्लाम में लेके आना है या क्रिश्चियनिटी में लेके आना है या जुडाइज्म में लेके आना है या किसी भी रिलीजन में लेके आना है तो ये सारी जो बातें हैं ना ये आपको सोचनी चाहिए कि वाई पाकिस्तान को इसलिए चुना गया क्योंकि इस मुल्क की जो तारीख है ये मजहब की बुनियाद पे बना है और मजहब की बुनियाद पे उस स्टेट को कायम रखने के लिए उसमें वो खौफ वो उस तरह का वो माहौल बना के रखना उनकी मजबूरी है ताकि ये लोग जो लिबरल थे जो जेनेटिकली लिबरल हैं इन लोगों को इस चीज से हटने पे जो चीज रोके रखेगी वो यही है कि कोई भी इंसान जो है मजहब के ऊपर ना तो ज्यादा सवाल करे ना किसी भी मजलिस में उसके ऊपर गुफ्तगू हो ना तो क्रॉस क्वेश्चन हो अगर कोई करे क्रॉस क्वेश्चन तो हम उसके ऊपर ये वाली जो सैंक्शंस हैं वो लगा के उसको अंदर कर दें तो ये खौफ का माहौल बनाया गया है और ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वो इस स्टेट को इस्लामी स्टेट बना के रखना और लोगों को डर और खौफ में जिंदा रखना मकसद है इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है वरना अरबों की जो तारीख है वो तो कत्लो गारत से भरी हुई है ठीक है वहां पे तो उन्होंने अगर इतने वो अच्छे थे तो जितनी ब्लॉसफेमियां उन्होंने करनी हुई है एक दूसरे की